Good morning, students. Today we are going to start the new topic of our class 7th, that is congruence of triangle. This is 7th chapter of your NCERT textbook. Now the word congruence. This word you people are hearing for the first time. Okay, like till now there are few words which you have already heard. Okay, but this is completely a new word. So first of all we will understand that what is the meaning of congruence. ठीक है, congruence का क्या मतलब है सबसे पहले हम वो समझेंगे. Triangles, you know that what a triangle. Triangle is a three-sided polygon or it is a figure made up of, it is a simple closed figure made up of three line segments. So triangles, you know it very well. Now look at congruence. Before explaining congruence, I will show you some examples. Okay, you can see that these are the two ATM cards. Okay, and when I will keep this ATM card one over other, you can see that both are completely overlapping each other. ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, इस ATM कार्ड से आपको पीछे वाला कार्ड बिल्कुल नहीं दिखाई देगा. ओके, सिमिलरली दिस वे ऑल्सो यू कैन सी कि यहाँ से भी आपको पीछे वाला जो कार्ड है वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा. सो दिस इज वन एग्जाम्पल. Two shapes you have seen which are completely overlapping each other. One more example I will show you, like biscuits you eat every day. Now in biscuits also, when you will put two biscuits in a hand, तो सारे बिस्किट का जो साइज है वो बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम. ठीक है, एक दूसरे के पीछे वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं. एंड अराउंड यू ऑल्सो you can see so many examples, like the ID card which you are wearing. आपका ID card, आपके फ्रेंड का ID card, both will overlap each other. स्कूल डायरी जब आप स्टैक में खरीदते हो, दे ओवरलैप ईच अदर. ठीक है, आपकी सपोजिंगली क्लास 7th की मैथ्स की बुक है, उसको आपने लगा दिया, दे ऑल्सो ओवरलैप ईच अदर. सो कॉन्ग्रेंस वर्ड, कॉन्ग्रेंस को आप बोल सकते हो बिल्कुल एक एग्जैक्ट फोटोकॉपी, जीरोक्स. ओके, सो कॉन्ग्रेंट शेप्स आर द शेप्स or congruent figures are the figures which have same shape also and same size also. So how we can define congruence? First of all, remember the spelling, congruence. Okay, two shapes or figures are said to have congruence if both of them have same shape and size. ये इंपॉर्टेंट चीज है. अगर सेम शेप और साइज है, then the two figures are said to be congruent figures or they are said to be congruent, said to have congruence. Okay, they are called congruent figures. Okay, examples I have shown you. two ATM card, बैंक के दो पासबुक ले लीजिए आप, सेम बैंक के दो पासबुक ले लीजिए, they are also congruent. So many examples you can see, like these two markers are also congruent. All the erasers, like whenever we are buying a pack of eraser, that are also congruent. We are buying a pack of pencil, that is also congruent. So many real life examples you can find around you which are congruent in shapes. Okay, now for maths we will study the congruence of particular shapes. First of all we will study congruence of plane figures. Okay, congruence of प्लेन फिगर्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, लाइक ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, रोम्बस, सो मेनी थिंग वी कैन हैव. तो ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जैसे ऐसा ही एक और ट्राइंगल मिल जाए, सेम ट्राइंगल, दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. सेम स्क्वायर मिल जाए, दे आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, सिमिलरली सेम रेक्टेंगल, सेम circle of same radius, rectangle of same length and breadth are congruent. Triangle of all the corresponding three sides same.
ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंस ऑफ प्लेन फिगर्स। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्ग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में कैसे होगा कॉन्ग्रेंस? कॉन्ग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स, इसमें आप कैसे बताओगे? सपोजिंगली एक ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और जो सी डी जो लाइन सेगमेंट है वो भी 5 सेंटीमीटर का है, देन ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी। ओके, सिमिलरली वी कैन हैव कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स ऑल्सो, ठीक है। कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल कैसे होगा देखिए आप, एंगल्स कॉन्ग्रेंट कब होंगे? जब सपोजिंगली दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, ओके, थोड़ा आर्म्स को एक्सटेंड कर दूं, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री, ए ओ बी इज 60 डिग्री एंड पी क्यू आर इज 60 डिग्री, देन एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी क्यू आर। अब सबसे बड़ी चीज इस कॉन्ग्रेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे इक्वल का साइन होता है ये, ठीक है, नॉट इक्वल का साइन होता है ये होता है हमारा पैरेलल का साइन, ठीक है, ये होता है प्लस का सिंबल। वैसे कॉन्ग्रेंट का भी सिंबल होता है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी, ये है कॉन्ग्रेंट का सिंबल। दो इक्वल के साइन, मतलब इक्वल का साइन लगेगा, फिर उसके ऊपर ऐसे ये एस, लाइंग एस बन जाएगा। दिस इज द सिंबल फॉर कॉन्ग्रेंस। ओके, सो कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स आपको समझ गया अगर दोनों का मेजर सेम होगा। कॉन्ग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट कब होगी? जब दोनों की लेंथ सेम होगी। नाउ द मेन टॉपिक इज कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रेंट होंगे, दैट वी विल कम टू नो। Important topic which we are going to discuss, that is congruence of triangle. Okay, for this first of all we will take two triangles A, B, C. Okay, similarly I will take, okay, so this is P, Q, R. अब ये दोनों ट्राइंगल A B C है इसका नाम, and this is triangle P Q R. So when they will be congruent, ये congruent कब होंगे? ये कॉन्ग्रेंट तब होंगे अगर ए बी इक्वल टू पी क्यू है, ठीक है, दोनों में सिंगल सिंगल साइन लगाए हैं, मतलब ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? क्यू आर, एंड ए सी इज इक्वल टू होना चाहिए पी आर। लेट मी राइट, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। इन दोनों ट्राइंगल के बीच में रिलेशन बैठाना है, ठीक है। ए बी इज, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ए बी इज इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद पी क्यू। सिमिलरली पहले कॉरेस्पॉन्डेंस देख लेते हैं हम लोग। इस डायग्राम को देख के ए बी इज कॉरेस्पॉन्डेंट टू पी क्यू, बी सी इज इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद क्यू आर, एंड ए सी, इस साइन को हम क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डेंस विद पी आर। दिस साइन इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, कॉरेस्पॉन्डेंस। सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। इनको चाहे हम इक्वल बोल लें या फिर इसमें भी हम लोग क्या लगा दें? कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन लगा दें। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब भी ये इससे रिलेट कर रहा है और इक्वल है एक दूसरे के। ओके, सो दिस इज साइड्स आर ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑल द थ्री साइड्स आर कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ऑल द थ्री एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, इक्वल। When this is possible when triangle ABC is congruent to triangle PQR। अगर ABC और PQR दो congruent triangle हैं तो automatically all the corresponding three sides will be equal and corresponding three angles will also be equal। I am repeating it again, अगर कोई दो triangle आपको congruent दिए हुए हैं तो उसके corresponding three sides और corresponding three angles ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। और एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी और दिया हुआ है ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ए बी इक्वल किसके होगा? पी क्यू के, बी सी इक्वल होगा क्यू आर के। मतलब जो सीक्वेंस यहाँ नेमिंग में होगी वही सीक्वेंस यहाँ भी होगी। ए सी विल बी इक्वल टू पी आर, ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू, सी इज इक्वल टू एंगल आर। अगर सपोजिंगली इस ट्राइंगल का नाम मैं ए बी सी ना करके मैं कर दूं बी सी ए, ठीक है,
और फिर मैं लिख दूँ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इस सिचुएशन का ऐसे लिखने का क्या मतलब है कि बी सी इज इक्वल टू पी क्यू है, सी ए इज इक्वल टू क्यू आर है, एंड बी ए इज इक्वल टू पी आर है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर है। व्हाट डज इट मीन कि कॉन्ग्रेंट जब हम नाम लिखते हैं ट्राइंगल्स का तो उसमें उसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे नहीं कि आप ट्राइंगल ए बी सी को बी सी ए लिख दो, सी ए भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, दिस इज नॉट पॉसिबल। जो पार्ट जिसके कॉरेस्पॉन्डेंस है, मतलब आप ट्राइंगल में देखो दो चीजें फिक्स कर लो, जैसे सपोजिंगली आपको पता चल गया बी सी और क्यू आर इक्वल है, तो बी सी लिख दो और यहाँ क्यू आर लिख दो, ठीक है। जो बचा वो लास्ट में लिख दो, इसका ए बचा और इसका पी बचा। नाउ दिस ऑर्डर विल बी करेक्ट, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको कॉन्ग्रुएंसी में ध्यान रखना है कि इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पार्ट इक्वल है उसी के रिलेटेड हमें उसका नाम भी लिखना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये 6 चीज़ें ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी, ओके। एंड इफ यू हैव टू प्रूव एनी 2 ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट, तो उस सिचुएशन में वी आर हैविंग सर्टेन कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। हमारे पास कुछ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है जिससे हम 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। दैट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वी विल स्टडी इन नेक्स्ट एक्सरसाइज। अभी हमें बस ये पता करना है कि कॉन्ग्रुएंट अगर दिया हुआ है तो कैसे उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। 7.1 का अगर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताऊं, इन फर्स्ट क्वेश्चन इट इज रिटन कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पूरे करने, फिल इन द ब्लैंक्स आर देयर। ए पार्ट 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट if have same length होंगी तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। बी पार्ट among 2 congruent angles one has a measure of 70 degree, the measure of other angle will also be 70 degree, दोनों सेम होंगे। सी पार्ट when we write angle A is equal to angle B we actually mean, क्या मतलब है अगर एंगल A और एंगल B को हम इक्वल करेंगे means 2 angles are congruent, which means angle A and angle B are congruent angles क्योंकि दोनों का मेजरमेंट सेम है, ओके। नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, give any 2 real life examples for congruent shape. This I am leaving it for you, okay, because in this you can have variety of examples and everyone will write their own examples. Now similarly in third, if triangle ABC is congruent to triangle FED, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका FED, under the correspondence क्या है, ABC is in correspondence with FED, okay. Write all the corresponding congruent parts of the triangle. अब कौन कौन से corresponding parts equal होंगे, सी इसके अकॉर्डिंग AB किसके इक्वल होगा, FE के। सिमिलरली BC will be equal to ED, okay, and AC is equal to FD। आप इक्वल की जगह यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस का भी साइन लगा सकते हैं, ओके, दे आर कॉरेस्पॉन्डेंस। नाउ क्योंकि यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स पूछा है, एंगल A is in correspondent with angle F, angle B is in correspondence with angle E, angle C is in correspondence with angle D. So in this way third question is complete. Now in question number 4, if triangle DEF is congruent to triangle BCA, ये दोनों congruent है, write the parts of triangle BCA that is इसके हमें parts लिखने हैं। A पार्ट में पूछा है एंगल E के कॉरेस्पॉन्डेंस कौन होगा, E बीच में है सो C होगा। सेकेंड पार्ट में पूछा है, दिस वाज फर्स्ट पार्ट, EF
ई एफ के कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन होगा? तो ई एफ लास्ट का 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ए। सी पार्ट थर्ड पार्ट में पूछा है एंगल एफ, बहुत इजी है बेटा ये। एंगल एफ लास्ट में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंगल ए। आप इक्वल भी लगा सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस भी लगा सकते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है डी एफ, तो डी ये रहा डी एफ, तो इसका भी क्या होना चाहिए बी ए। In this way you can write all the corresponding parts of a congruent triangle. So now I hope you have understood what is the meaning of congruence. These are the shape which have same shape and size, thus they overlap each other. और ट्राइंगल्स की मेन कॉन्ग्रेंसी की हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उसकी all the 3 sides will be corresponding to each other and all the 3 angles will be corresponding to each other. So this is all about exercise 7.1. The next topic we will discuss in our next class. Thank you, students.